हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने हमारी पहले वाली वीडियो में वेन डायग्राम के ऑपरेशंस और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था। आई होप आप सभी को वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आज हम उन्हीं पर बेस हमारी जो एक्सरसाइज है उसके सवाल सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपको पूछा गया है कि यूनियन आपको फाइंड करना है और आपको दो सेट दिए हुए हैं। तो फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है आपका फर्स्ट पार्ट ए एक्स आपको गिवन है 1 3 5 एंड वाई इज गिवन 1 2 3। आपको बताया गया था जब हम यूनियन निकालते हैं तो जो भी जितने भी सेट हमें गिवन होते हैं उनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आपके हैं वो सभी एलिमेंट्स यूनियन में आपके लिखे जाते हैं। तो यहाँ x यूनियन y आप जो लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे, सेट 1 3 5 union 1 2 3, it becomes 1 2 3 5. Next, second part, A is A E I O U and B is A B C. So A union B is become A E I O U union A B C. We have to write every element one time. A B C E I O U. It becomes its union A union B. Now third is saying that x is a natural number and multiple of 3. Means x में जो आपके एलिमेंट हैं वो होंगे इस टाइप से 3 6 9 12 and so on. And y is saying that here A, this is our A and this is our B. B में आपको क्या कहा गया? X is natural number less than 6. Natural number we know that it start from 1 and less than 6 means up to 5. Now A union B, it becomes 1 2 3 4 5 6 9 12 and dash. Question number 4, first part 4, A is x is a natural number. नेचुरल नंबर जो है आपके वो 1 से ग्रेटर और 6 से इक्वल और लेस होने चाहिए। तो A जो सेट मिलेगा यहाँ पे हमें वो मिलेगा आपको 2 3 4 5 एंड 6 और B पर हमें मिल रहा है यहाँ पे नेचुरल नंबर है जो कि आपके पास है 6 to 10 के बीच में। तो आप लिखेंगे यहाँ 7 8 9। Here we get our union A union B, that is 2 3 4 5 6 7 8 and 9. This is our A union B. Now we have given fifth A is 1 2 3 and B is 5. We know that A is 1 2 3 and B is 5 is given. So how can we find our union? In union you can write A is 1 2 3 and B is 5. So A union B is 1 2 3 union 5. It becomes 1 2 3. Now in second question they are saying that A is AB and B set is ABC. Is A contained in B? We know that if any set is saying that A is contained in B, what we check? We check its element of that set. A contained A and B element and B contained A, B, C. We know that A and B contained in A, B, C means B set. So we can say that solution of question number 2, A is given A, B and B is given A, B, C. Is A contained in B? A contained in B. Here we can see AB contained in A, B, C. Yes, A contained in B. Now next, what is A union B? Then
A union B is A, B union A, B, C. We get here our union A, B, C. Now last आपका थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पर, if A and B are two set such that A contain in B, then what is A union B? What they are saying? That A contained in B means B is a superset of A. We can say that A is subset of B, or we can say B is superset of A. A is subset of B and B is superset of A. Solution number third, we have given A contained in B means every element of A contained in set B. Every element of set A contained in set B. Now A union B is become B. Why? Because we know that B is a superset of A. When we take their union, we get our superset. Means what is our superset? That is B. So here we get our superset B. फोर्थ जो क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पर, उसका सॉल्यूशन आपका होगा फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा हुआ है A यूनियन B. यूनियन आपको बताया गया था कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं आपके, यहाँ A और B सेट की बात की गई है, तो A और B में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके वन टाइम लिखे जाएंगे. तो यहाँ हमारा जो सेट बनेगा वो होगा 1 2 3 4 5 एंड 6. सेकेंड पार्ट में आपसे बोला गया A यूनियन C निकालिए. तो A यूनियन C में आप देखेंगे A 1 2 3 4 5 6 7 8. थर्ड पार्ट में आपको बोला गया है B यूनियन C फाइंड कीजिए. तो B आपके पास है 3 4 5 6 एंड C में है 7 8. नाउ फोर्थ आपके पास है B यूनियन D. B यूनियन D में आप देखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10. फिफ्थ पार्ट में आपके पास है A यूनियन B यूनियन C. आप तीन सेट को एक साथ लेके चल रहे हैं यहाँ पे. तो आपके पास फर्स्ट A में है 1 2 3 4, B में है आपके पास 5 6 और C में होंगे आपके पास 7 8. Now sixth part A union B union D. It becomes 1 2 3 4 5 6 और D में आपके पास है 7 8 9 10. Now सेवंथ में आपसे पूछा गया है B यूनियन C यूनियन D. B में आपके पास है 3 4 5 6, C में आपके पास है 7 8 और D में आप लेंगे 9 10. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, दे आर आस्किंग दैट फाइंड द इंटरसेक्शन X and Y are given. So फिफ्थ पार्ट फर्स्ट X इंटरसेक्शन Y. इंटरसेक्शन मीन्स जो आपका कॉमन पार्ट आ रहा है X और Y में, वो एलिमेंट्स हम लेते हैं यहाँ पे. तो यहाँ आप देखेंगे कि आपके पास 1 और 3 ये दो कॉमन है, तो यहाँ हमारा सेट बनेगा 1 and 3. नाउ सेकेंड पार्ट A, ओनली वन एलिमेंट वी हैव फाइंड. A इंटरसेक्शन B इज सेट में आपके पास आएगा सिर्फ एक एलिमेंट A. थर्ड में आपसे बोला गया है 3 6 9 A सेट में है और यहाँ है 1 2 5. तो आप देखेंगे कि सिर्फ 3 जो एलिमेंट है वो हमारा यहाँ पे कॉमन आता है. फोर्थ पार्ट में है आपके पास A और B आपको गिवन है. आप देखेंगे यहाँ इंटरसेक्शन में 2 A सेट में है 2 3 4 5 6 और B सेट में है 7 8 9. मीन्स कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं है, तो आप इसमें लिखेंगे A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5.
नाउ फिफ्थ में आपको बोला गया है 1 2 3 ए सेट है और बी के अंदर एम्प्टी है, तो इंटरसेक्शन मीन्स आपके पास जो एलिमेंट कॉमन आ रहा है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, तो हम बोलेंगे इसको एम्प्टी। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज they have given us the set and their parts, but we have to find. Let's start question number 6 part first. A intersection B. A intersection B. A is given 3 5 7 9 11 and B is 7 9 11 13. Common part is 7 9 11. Second, B intersection C. We can see that it's in C set we have 11, 13, 15, and in B 11 and 13. Now in third, A intersection C intersection D. A intersection C, हम यहाँ लिख लेते हैं, हमारे पास जो सेट है 3 5 7 9 11। C आपका जो सेट है 11 13 15 और D आपके पास जो सेट यहाँ दिया हुआ है उसमें एलिमेंट दे रहे हैं ये 15 और 17। आप देखेंगे तीनों के अंदर जो एलिमेंट है हम वो अपने सेट में लिखेंगे। यहाँ हमारे पास 11 है, यहाँ भी 11 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 15 है आपके पास लेकिन इस सेट में नहीं है। इसी तरह 13 और 17 ये आपके पास इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, तो आपके पास ये जो इंटरसेक्शन बनेगा वो होगा 5। नाउ नेक्स्ट फोर्थ, A इंटरसेक्शन C। A और C में आप देखेंगे कॉमन आपके पास आता है 11 है, तो यहाँ आपके पास एलिमेंट एक ही आ रहा है, दैट इज 11। नाउ फिफ्थ इज B इंटरसेक्शन D। B and D set, this one 7 9 11 13 and D is 15 17. No element is common, so we write here 5। Now sixth is A intersection B union C। हम यहाँ अपना A सेट लिख लेते हैं 3 5 7 9 11। B सेट आपने लिखा 7 9 11 13 और आपके पास C सेट है 11 13 एंड 15। आपको पूछा क्या गया है यहाँ पर, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। सबसे पहले हम B यूनियन C निकाल लेते हैं, जो ब्रैकेट होगा पहले उसको सोल्व करेंगे, उसके बाद हमारी जो एक्स्ट्रा सेट्स रह जाते हैं उनको सोल्व करते हैं। तो B यूनियन C में आप देखेंगे यूनियन में आपके पास आ गए यहाँ पर 7 9 11 13 एंड 15। अब इसका हम A के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो A के अंदर हमारे पास एलिमेंट थे 3 5 7 9 11 और इसमें आ रहे हैं हमारे पास 7 9 11 13 15। तो आप देख सकते हैं कॉमन जो एलिमेंट्स आ रहे हैं 7 9 11। इंटरसेक्शन पूछा हुआ था इन दोनों का। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर नेक्स्ट आपसे पूछा गया है 7th में A इंटरसेक्शन D। A इंटरसेक्शन D, A में आपके पास एलिमेंट है 3 5 7 9 11 और D में है 15 17। कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट। नाउ 8 पार्ट में आपसे पूछा गया है A इंटरसेक्शन B यूनियन D। सबसे पहले हम निकालेंगे B यूनियन D। B यूनियन D अगर हम यहाँ से देखें, B और D हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 7 9 11 13 15 एंड 17। अब इसका हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं A के साथ। A के साथ जब हमने इंटरसेक्शन लिया तो आप देखेंगे 7 9 11, ये तीन जो है हमारे पास कॉमन एलिमेंट आते हैं।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 9, दैट इज A intersection B union C. Here B union C is if we find B union C 7, 9, 11, 13, 15 and A intersection B, that is 3, 5, sorry A intersection B अगर आप ले रहे हैं A intersection B, that is 7, 9, 11. Now A intersection B union C, it becomes intersection find करना है, it means 7, 9, 11. These elements are common. Now 10 A union D intersection B union C. Here B union C is 7, 9, 11, 13 and 15. And A union D is, we have A union D 3, 5, 7, 9, 11 and D is 15, 17. Now we have to find their intersection. So intersection is A union D intersection B union C is equal to, the common elements are 7, 9, 11, 15. This is our answer. Thank you.